عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز کا جائزہ ہوگا۔ وفد وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ تجاویز تیار کرے گا۔ ٹیکس ریونیو اقدامات پر پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گا۔ اخراجات پر کنٹرول اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق بات ہوگی۔ آئی ایم ایف وفد زرعی ٹیکس کی وصولی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے اہداف مقرر کرے گا۔ پینشن اسکیم پر عمل درآمد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائنانسنگ اور ترقیاتی پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ گھریلو صارفین کے لیے ₹7.41 فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً ₹34.37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی ₹7.41 سستی، صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں ₹7.69 کا ریلیف، کمرشل صارفین کے لیے بجلی ₹8.52 سستی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا اندیا، کہا بجلی کی چوری روک لی تو مزید سستی کریں گے، ڈسپوز کو فوری پرائیویٹائز کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ بجلی کے گردشی قرض کا بندوبست کر لیا ہے، آئندہ 5 سال میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ گردشی قرضہ کبھی گردش نہیں کرے گا۔ آئی پی پی سے کہا آپ نے کئی 100% کما لیا، اب قوم کو فائدہ دیں۔ بجلی کی قیمتوں پر آئی ایم ایف کو قائل کرنا بہت مشکل تھا، اب جو 3,696 ارب روپے کی پیمنٹ ہونا تھی وہ نہیں ہوگی۔ حکومتی ٹیم کی کاوشوں سے 3,696 ارب روپے کی بچت ہو گئی، مہنگائی 38% سے 1.5% پر آ چکی۔ جب ہم نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کے سر پر ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ کی دیوار یا تلوار کہہ لیجئے وہ لٹک رہی تھی، عدم استحکام عروج پر تھا۔ آئی ایم ایف بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے۔ یقین کی حد تک ان کو یہ بات پختہ ہو گئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے، اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ حکومت سنبھالے تو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، آئی ایم ایف بات سننے کو تیار نہ تھا، ایل سی کھولنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ملک کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے۔ ان کو یقین تھا اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ مخصوص ٹولے نے اپنی سیاست پر ریاست کے مفادات کو قربان کیا، اسی ٹولے نے عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدے کو توڑا۔ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی کے نرخوں میں کمی کے حکومتی پیکج کی تقریب سے خطاب، کہا معاشی استحکام کے سفر میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا جس کے لیے ان کے مشکور ہیں۔ 77 سال میں قوم کو غربت کی طرف دھکیلا، ان کو جڑ سے کاٹ کر پھینکنا ہے۔ اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں ان مسائل کی سرجری کرنی ہوگی، سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ مئی کے مہینے کا بل قیمت میں کمی کے ساتھ آئے گا، کمرشل صارفین کے ریٹ میں 12% کمی آئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی دنیا نیوز سے گفتگو، کہا 2 کروڑ صارفین کے بلز میں تقریباً بجلی کی قیمتوں میں 48 سے 56% کمی آئی۔ یہ متوسط طبقے کے لیے بہت بڑی کمی ہے۔ گھریلو صارفین کے 6 مختلف سلیبز ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی نے بجلی ٹیرف میں کمی پر بیان میں کہا، تاریخی کمی سے عوام کیا گیا وعدہ وفا کرنے کی طرف ایک اہم اقدام ہے۔ پاور ڈویژن اب بجلی کی قیمت میں مزید کمی پر کام کر رہا ہے، تقسیم کار نظام میں مزید بہتری لا کر قیمتوں میں کمی لانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ عوام کو بجلی کے شعبے میں اب بہتری ہی نظر آئے گی۔ ہمارے ان اقدامات سے صنعتوں کا پہیہ پوری قوت کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ 1.8 کروڑ صارفین کے لیے بجلی کے ریٹ میں جون 2024 سے لے کر اب تک 50% کمی ہوئی۔
2 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.50 रुपए से कम है, जो पैदावारी कीमत में 70% डिस्काउंट बनता है। 1 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.51 रुपए फी यूनिट है। 8 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 9.37 रुपए, 74 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 8.52 रुपए है। 15 लाख सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 4.78 रुपए। वज़ीर आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खराज तहसीन। कहा, बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। बिजली की कीमतों में कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। वज़ीर आज़म ने बिजली के नरखों में नुमाया कमी से अवाम दोस्ती, दूरअंदेशी और मुआशरी बसीरत का सबूत दिया है। बिजली के नरखों में कमी मुल्की मईशत और सनतों के फ़रोग के लिए भी एक अहम संग मील साबित होगी। नून लीग दिन रात अवाम को रिलीफ देने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, फिर मईशत को संभाला और अब बिजली सस्ती की। अवाम की हिमायत से और नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नून लीग अवामी उमंगों पर पूरा उतरेगी। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करना जरूरी है। सरबराह IMF का ट्रंप टैरिफ पर मौकिफ। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी वार। अमरीका से दरामद कार्स पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं, ट्रंप की तजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, सदर ट्रंप के टैरिफ जालिमाना और बेबुनियाद हैं। ट्रंप के फैसले खुद अमरीकी मईशत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टैरिफ पर जिन मुल्कों को खदशात हैं वो अमरीका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टिकटॉक मुआहदे के बहुत करीब हैं। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। एलन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। एलन मस्क के बाद भी हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौसी हमले कर रहे हैं और ईरान उनकी मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से गजा और इसराइल मामले में शामिल हुआ, मुखबियों को रिहाई मिली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स को बड़ा धचका। सरमायाकारों के अरबों खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नेस्डेक 6%, S&P 500.5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और जो बिजली के नरखों में कमी हुई है उसका यकीनन एक तरफ किरदार होगा एक्सपोर्टर्स की कंपेटिटिवनेस बढ़ाने में और उनकी एक्सपोर्टेबिलिटी, उनके प्रोडक्ट्स की, उसकी प्राइस कंपेटिटिवनेस बढ़ाने में। इस तरह की टैरिफ्स जब आएंगे तो उसका यकीनन एक मनफी असर होगा। तो हम बिल्कुल अपने अमेरिकन पार्टनर्स के साथ मिल बैठ के हमारी हुकूमत बात करना चाहेगी ताकि जो भी बामी सतह पर हम बेहतरी ला सकते हैं ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए, टैरिफ्स को कम करने के लिए, ताकि बायलैटरल ट्रेड को फ़रोग दिया जाए और हमारे एक्सपोर्टर्स को अमेरिका जो हमारे लिए क्रिटिकल एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ बरकरार रखने का बल्कि बढ़ाने का इंशाल्लाह हमें मौका मिले। उम्मीद करते हैं अमेरिका की जानिब से टैरिफ में नजरसानी होगी। इस तरह के टैरिफ से मनफी असर पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपना मुफाद देखना है और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कयानी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी में गुफ्तगू। कहा, बिजली की कीमत में कमी का सबको फायदा होगा। महंगाई की शरह भी मुसलसल कम हो रही है। निजकारी का अमल जारी है। अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो 25% चाइना का टैरिफ ज्यादा है। बांग्लादेश से कंपेयर करें तो 8% उनका टैरिफ ओवरऑल पाकिस्तान से ज्यादा है। सो एक कंपेटिटिव एज मिल गई है। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को रीवैम्प किए बगैर
री ऑर्गेनाइज किए बगैर, उर्दू में इसका लफ्ज़ है तंजीम नौ किए बगैर, आप कभी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम्पिटिटिव नहीं कर सकते। आप एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, यानी कि इतनी एफिशिएंट सर्विस हो कि आगे भी कमिट कर सकें कि उन्होंने जो एक्सपोर्ट करनी है वो टाइमली ऑर्डर्स करेंगे। मुआशी माहिरीन ने अमरीकी टैरिफ को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका करार दे दिया। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है, हमें मार्केट कैच करने के चांसेस मिल गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से $5 अरब की एक्सपोर्ट करता है, चीन का टैरिफ 25% ज़्यादा है। हमें आलमी मार्केट में एक फ़ायदा मिल गया है, कम कीमत पर चीज़ें बेच सकते हैं। अब हमें टेक्सटाइल बिजनेस और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना होगा, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुआशी माहिर आबिद सुलहरी ने कहा कि ये एक अच्छा मौका है। बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद है, श्रीलंका 44%, वियतनाम और कम्बोडिया 48 और 46% पर है। अमेरिका में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारी अकेले की नहीं, सबकी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। इंडस्ट्री का मेजर चैलेंज एनर्जी है, गवर्नमेंट को देखना होगा एनर्जी की सप्लाई कैसे मुहैया की जा सकती है। इन चैलेंजेस से काबू पा सके तो इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जा सकता है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाना अदालत की तौहीन है, अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। कानून के फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को अदालत बुलाया जाए, जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सजाओं का तयन होना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, 2.5 माह से हम मुतवातिर आ रहे हैं, मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई खुद लिस्ट देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात नहीं करवाई जा रही। आलिया हमजा बोली, जेल में बानी पीटीआई से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। बानी को ईद वाले दिन बहनों से मिलने नहीं दिया गया। बानी पीटीआई को जेल में बासी खाना खिलाया जा रहा है। पंजाब के तमाम महकमों में तैनातियां 100% मेरिट पर होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भर्तियों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तैनातियों और भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील, किसी सूरत सिफारिश नहीं चलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान, कहा सिफारिशी कल्चर से शदीद नफरत है, मेरिट पर तैनातियां होंगी और रिजल्ट मस्बत मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए भी पुरअज़्म। मरियम नवाज का लाहौर समेत सूबे के अस्पतालों के दौरों का फैसला, कहा आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात काम करना होगा, जिम्मेदारियां अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म से कैनाल्स का मंसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है, पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अगर कैनाल्स बनी तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी कभी कैनाल नहीं बनने देगी। कैनाल्स की मुखालफत की जाए, पीपल्स पार्टी की नहीं। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी। मुल्क भर से जयाले गड़ी खुदाबख्श में जमा होंगे। पीपल्स पार्टी गड़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी, तैयारियां जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी जलसायाम से खिताब करेंगे। सदारती रेफरेंस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया और रवां साल 23 मार्च को उन्हें निशान पाकिस्तान अता किया गया, जो उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम मुतब्बिर और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। जुल्फ़िकार भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का बरसी पर पैगाम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़िका आइन बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी, शिकस्त ख़ोर्दा कौम को मायूसी से निजात दिलवाई। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में स्कूल पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में मुसलसल बमबारी से 71 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। शुमाली गजा में 24 घंटों के दौरान 1,35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का इनखला। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज़ कर गई। 1,14,638 अफराद ज़ख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्स्मिथ की यमन पर फ़ज़ाई हमलों से मुताल्लिक चीट की तहकीकात की जाए।
جائزہ لیا جائے کہ وزیر دفاع نے محکمہ دفاع کی پالیسیز پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ سگنل چیٹ تنازع پر پینٹاگون کا انسپیکٹر جنرل آفس وزیر دفاع سے تحقیقات کرے گا، خبر ایجنسی۔ ایلن مسک نے مودی حکومت پر آزادی رائے پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس سینسرشپ پالیسی سے مبرہ ہے، اس پر پابندی ختم کی جائے۔ بھارتی وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے ویب سائٹس پر ایکس کی مختلف پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ ایکس پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر کے بھارت اپنے ہی آزادی رائے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایلن مسک کا موقف۔ امریکی ریاست آرکنساس میں طوفانی بگولوں سے تباہی مچ گئی۔ مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ طوفانی بگولوں نے متعدد مکانات اور عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی سپلائی متاثر، محکمہ موسمیات کی مزید بگولوں کی پیش گوئی۔